are doing GFG problem of the day, and the date is 26/12/22. So this is the Akku and Binary number. So ये है problem basically. इसमें क्या दे रखा है हमें कि Akula is the binary number. She plays with the numbers. Basically your question है. So basically question में आपको दो चीजें दे रखी हैं, L and R. ठीक है, input you have been given two numbers L and R. So you want to tell how many numbers between this L and R have only three bits set. Akku have to find the count of the numbers which have only three bits set in this binary representation. So pretty easy question, because you are looking for three bits which are set. Total number of bits, how many total number of bits are there? If you say like you'll say 32 bits are there, but that's basically when we talk about int. But the L and R range is 110 की power 18. So 10 की power 18 को satisfy कराने के लिए how many bits you need? You need 64 bits. That is the thing. तो आपको 64 बिट्स का एक नंबर होगा, उसमें एटलीस्ट आपकी एटलीस्ट नहीं एग्जैक्टली 3 बिट्स होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट होती तो गलत पंगा हो जाता, बिकॉज देन 3 इज आल्सो गुड, 4 इज आल्सो गुड, 5 इज आल्सो गुड फॉर यू, बट नाउ यू वांट एग्जैक्टली 3 गुड, यानी 3 सेट बिट्स, ठीक है। सो यही है, इसका आंसर इज completely equal to selecting 3 numbers from 64 नंबर, क्योंकि कोई भी मैं 64 नंबर्स में से 3 नंबर सेलेक्ट कर लूंगा, एंड देन व्हाट आई विल से कि इन तीनों बिट्स को मैं वन करके देखता हूँ, अगर ये नंबर इसकी रेंज में है तो आई विल से ओके ये नंबर इसकी रेंज में है, तो लेट्स से काउंट को प्लस प्लस कर दूंगा, अदरवाइज आई नॉट डू काउंट प्लस प्लस। और अगर किसी तरह से वो नंबर आपका मैक्सिमम से भी बढ़ा जा रहा हो, आर से बढ़ा जा रहा होगा, तो उसके आगे आने वाले जितने भी आप नंबर लेंगे, क्योंकि हम ऐसे इंडेक्स वाइज चल रहे हैं, लाइक आई जे के, हम वैसे ऐसे उठा रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज 0 to 64, 0 to 64, ठीक है। तो हमें बस ये देखना है कि इसमें से आपको दिस इज बेसिकली बिट्स वाइज, बट आपको अगर जनरली आप नॉर्मल लॉजिक सोचोगे कि L to R आई कैन आइटरेट एंड देन आई कैन सी लाइक which many numbers have bits set, then it will give TLE, because for that you want the time complexity of R minus L, ठीक है, O of R minus L या फिर O of N kind of, but over here you have to do O of log N में, so that is also good, but because the question is pretty simple that you need only 3 set bits, so आप वो नंबर सारे नंबर्स के लिए चेक नहीं करेंगे, rather what you will do, you will generate a particular number that have only 3 set bits. Okay, so now you are having the number which is having 3 set bits, but you have to see that whether this is in this range or not, so otherwise count plus plus, otherwise not. So let's do coding. So over here, what I'll do, keep for loop for you have to select 3 numbers. So everyone knows how to select 3 numbers. Like for 2 numbers, we want n square, 2 loops, and for 3 numbers, we will take n cube, or right, 3 loops. I plus plus, and then for int j is equal to I plus 1, क्योंकि जीरो लेने का तो मतलब नहीं है, क्योंकि बिकॉज दैट बिट यू ऑलरेडी सेट, फॉर एग्जांपल यू वांट 3 डिस्टिंक्ट बिट्स, राइट, तो आपको व्हाई दिस, and let's say this is it. So you have selected a particular I element, then you will आगे से आप एक और एलिमेंट उठाना चाहोगे, उसको j बोल देंगे, j के आगे एक और एलिमेंट उठाएंगे, उसको k बोल देंगे, ठीक है। तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, i j के कुछ भी हो सकता है, but you have to select every possible 3 combination of distinct bits. So this is the way how to do it, and like how we do in basically n square kind of thing, but over here you have to do n cube, because generally when you have to select 2 numbers, then because जब हमें सब एरे देखना होता है, एक तो हम 2 नंबर स्टार्टिंग और एंडिंग चूज करते हैं, तो n स्क्वायर का लूप चलाते हैं। अभी हमें सब एरे नहीं देखना, हमें एग्जैक्टली 3 वो बिट्स चाहिए, तो बेसिकली हमें 3 पॉइंटर्स चाहिए, तो 3 पॉइंटर्स के लिए 3 लूप लगेंगे, ठीक है। और दैट्स व्हाई इन्होंने ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको 64 क्यूब दे रखी है, बिकॉज ये टोटल बिट्स कितनी है हमारे पास, 64 बिट्स है, राइट, उस पर हमें 3 उठानी है इसमें से। सो एंड देन लेट्स टेक for int k is equal to j plus 1 से लेके k less than 64 and k plus plus, and let's do this, and let's say that what is your number, ll we define ll is equal to number, कैसे हम define करेंगे, ll of basically long long of 1 goes to I, basically what does this mean, na, is it 2 की power I, and plus that's setting this means what does, okay, I hope like everyone knows what does the setting this bit means. Like setting this bit means like every other number is 0, and you have this one, and then you have this one, and then you have this one, something like that, so let's say forget about these number, or maybe like just one, because yeah, that number, so this number basically these 3 bits are set, which means the its number की वैल्यू कैसे निकालेंगे, n is equal to 2 की पावर 0, because लास्ट बिट इसकी सेट है ये वाली राइट मोस्ट बिट, तो 2 की पावर 0 आएगा, which is equal to nothing but 1,
सो 1 प्लस 2 की पावर ये कौन सी होगी, 1 2 सॉरी 0 1 2 3। सो एज यू नो दिस 1001 क्या होता है हमारा, 10 होता है ना, आई थिंक नो 10 तो नहीं हो सकता, ये 9 होता है बेसिकली, बट दिस इज बेसिकली 2 की पावर 3 वाली बिट, तो 2 की पावर 3 बिट सेट है तो प्लस 8 कर देंगे हम। सो प्लस एक और चीज करेंगे, 2 की पावर कौन सी बिट होगी, 3 होती है, 4 5 6, 2 की पावर 6 विच इज 64 आई थिंक, राइट। So 64 plus 9 73 whatever it is that doesn't think, but आप n की वैल्यू कैसे निकालोगे, by looking at this bits 2 की पावर I j k को ऐड करके, राइट। और भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, whatever you want you can do that, uh, and ll of आपका 1 j plus में ll of, why I'm doing long you know because the numbers are pretty large over here, and then I need to see if your n is greater than equal to l and your n is less than equal to r, you will say okay count plus plus, otherwise you don't have to do anything, but यहाँ पे आई पे एक कंडीशन लगा दो कि यार ऐसा ना हो कि तुम पहली बिट जो सिलेक्ट कर रहे हो वही तुम्हारी इससे आगे निकल गई, 64 से आगे निकल गई तो फिर चांस ही नहीं है कि आगे की दो बिट सेलेक्ट कर सको, वैसे तो ये मतलब हाँ 63 से आगे नहीं निकलना चाहिए, बेसिकली आई शुड बी लेस देन इक्वल टू व्हाट, नहीं नहीं नहीं, लाइक और हियर यू कैन राइट कि 1 फॉर आई शुड बी लेस देन आर, ऐसा कुछ कर सकते हैं हम, है ना, मतलब कि आपका जो मैक्सिमम जो आप एक नंबर ले रहे हो दैट शुड बी लेस देन आर, राइट, आर। ओके तो दिस थिंग एंड देन अब बेसिकली बात आती है कि मान लो एक ऐसा नंबर तुम्हें मिला आई जे के करके कि जो की वैल्यू अब उसकी एक्सीड कर गई है तुम्हारे आर से, तो तुम्हें आई के नंबर देखने की जरूरत नहीं है, ओके आई थिंक मैंने डिलीट कर दिया वो, क्योंकि मान लो अगर आपको अभी ये नंबर मिल रहा है और ठीक है इसकी वैल्यू आपको लेट्स से, क्योंकि आई हमारा बस आगे बढ़ रहा है, ठीक है, आई हमारा और नो आगे मतलब इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, ये जीरो से ये ऐसे आगे बढ़ रहा है, तो अभी मान लो 73 वैल्यू मिल रही है मेरे को और मैं देख रहा हूँ कि यार ये मेरे रिक्वायर्ड नंबर से ज्यादा हो गई, रिक्वायर्ड नंबर मेरे को मान लो 50 तक अलाउड करता था, तो अगर मैं इस आई को एक और आगे बढ़ाऊंगा या फिर मैंने अगर इस जे को भी आगे बढ़ा दिया या फिर इस के को भी आगे बढ़ा दिया, क्योंकि सबसे अंदर कौन सा लूप है, के, सो सबसे अंदर के पहले बढ़ेगा, ठीक है, अगर मैंने के को बढ़ा दिया तो उसकी सेंस ही नहीं बनती, क्योंकि पहले यही जो था यही ऑलरेडी बढ़ा था, अगर तुम नंबर को बढ़ा रहे हो तो वो और बढ़ जाएगा, है ना, तो वो हमें चाहिए नहीं, ठीक है, क्योंकि हम इस डायरेक्शन में मतलब बेसिकली बिट्स को आगे बढ़ रहे 64 की तरफ, तो इसमें रिवर्सिंग होती है, this is zeroth bit and this is 7th 8th bit whatever it is, but that's how we do it, and let's say कि if your current value n की पार हो जाती है r के, so you have to break out because no need to move further, right, just थोड़ा सा टाइम बचा लेगा ये हमारा, और कुछ नहीं है, रिटर्न हम कर देंगे अपने काउंटर को सी, एंड काउंटर बनाया नहीं हमने, इंट सी इक्वल टू 0, और ये चीज आई थिंक हमें नीचे लिखनी चाहिए, यूजिंग एल एल कर देते हैं हम, यूजिंग एल एल इक्वल टू लॉन्ग लॉन्ग, लेट्स ट्राई टू sum this up, pretty simple and straightforward question, right, and output is 0, why n is less than this and n is less than that, एल एल 64 and I plus plus equal to 0, so 64 plus 1 k equal to I plus 1. Oh, I think write like something like this, write like something like this, and write something like this. Brackets are, I think, important in this. 21. Why 21? Should I do or between these? Blank हो जाता है यार, देख लेते हैं, सबमिशन हमने अभी जस्ट करा था, 64 and is less than R, J, K,
मतलब फर्क ज्यादा कुछ नहीं है, मतलब फर्क बस इतना है कि यहाँ पे एक और ब्रैकेट है, यहाँ पे एक और ब्रैकेट है। आई थिंक समथिंग लाइक दैट यू हैव टू डू। ठीक है, अब ये मतलब बस वही है यार, ये लॉन्ग लॉन्ग का थोड़ा सा मतलब कैसे आपको नंबर्स को एडिशन करना है, बट दैट शुड नॉट बी अ बिग प्रॉब्लम। बेसिकली लॉजिक यही है कि आपको तीन नंबर चूज करने हैं अपने 64 में से, और उस जाके उस बिट को हमें सेट कर देना है। फिर हमें बस ये चेक करना है कि वेदर इट इज इन रेंज और नॉट, उसके बेसिस पे आंसर। ओके गाइस, बाय।